Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sumit Kumar Gupta and you are welcome on Sumit's Academic Zone. We will be talking about MECP 101 today, which comes under Masters of Arts in Economics. Like if you are studying Masters of Arts in Economics and you are in first year, then you have to make MECP 101 project report. I will be guiding you through whole guidelines so that you will have entire knowledge of making this particular project. So I am taking you to the guideline of MECP 101 Masters of Arts in Economics. Okay, so this particular guideline has so many things. I'll be taking you to the most important things, which is submission of project proposal, project supervision, project evaluation, then data collection, data sources, data analysis, writing of project report, and the annexures, project proposal pro forma, first page of the project work, certificate, and etc. So I'll be guiding you through the most important things in this guideline. Okay, so let's talk about the submission of project proposal. Once you complete your project proposal, you have to send that particular project proposal to this particular address, okay, which is Maidan Gadi IGNOU. This is the headquarter of Indira Gandhi National Open University. Okay, now the next thing is project supervision. You have to understand this thing particularly because unless you have a supervisor, you cannot make your project because he will gonna approve it. Okay, so let's read it out loudly so that you can understand it. Okay, your project shall be guided by a supervisor approved by the Faculty of Economics, Indira Gandhi National Open University, New Delhi. All academic counselors are eligible to act as a supervisor for project work. A list of supervisors is available with the coordinator of your study center. ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने स्टडी सेंटर पे जाना है, वहां पे जो कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे आपको ये पूछना है कि हु विल बी द सुपरवाइजर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. उनके पास सारे सुपरवाइजर्स जो सब्जेक्ट्स रिलेटेड सुपरवाइजर है उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, वो आपको बताएंगे कि किससे आप अपना प्रोजेक्ट सुपरवाइज करवा सकते हैं. ठीक है, that is what written here. A list of supervisor is available with coordinator of your study center. ठीक है, once you have selected a board area for study, we have listed some areas in subsection. Okay, once you have selected a board area of study, please contact your coordinator who will assign a supervisor. जो coordinator आपके study center पे होंगे वो आपको assign करेंगे supervisor. आप हमेशा ये बात याद रखिए. ठीक है, एक बार आपका प्रपोजल बन जाएगा, आप अपने स्टडी सेंटर पे जाएं, वहां पे कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके सुपरवाइजर असाइन कराना होता है. ठीक है, please contact your coordinator who will assign a supervisor to you suited to your study. In case the name of supervisor is not approved by the faculty, you will have to give the name of another person eligible to become your supervisor. आप सुपरवाइजर बाहर से भी ले सकते हैं, इसके कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं जो कि मीट कराना होता है. ठीक है, you should prepare a project proposal with the help of your supervisor, academic counselor available at your study center, any research institute of your choice. तो you should prepare a project proposal with the help of your supervisor. अपने सुपरवाइजर से कांटेक्ट करके आप टॉपिक फाइनल कर सकते हैं, उनसे सुपरविजन ले सकते हैं कि आप कैसे प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएं. ठीक, तो सुपरवाइजर का आपके प्रोजेक्ट में रोल क्या होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इज. ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ताकि आप सुपरवाइजर से हेल्प ले सकें. विथ
such local groups and agencies as may be relevant to your work. Suppose आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप स्टडी कर रहे हो, तो आपके सुपरवाइजर आपको हेल्प कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से कोऑर्डिनेट करने के लिए, ठीक है. गिव यू लेटर ऑफ ऑथराइजेशन which would enable you to make inquiry and investigation in different offices pertaining to your work. ठीक है, वो आपको लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे सकते हैं, जिससे आप जिस आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर कोई स्टडी कर रहे हो, इंक्वायरी कर रहे हो, तो आपको उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए इजी होगा. मेक एक्सेसिबल टू यू द लाइब्रेरी एट द स्टडी सेंटर फॉर कंसल्टेशन पर्पस. Advise you the best of his her efforts about your theme, location, your data, general work plan. Suggest books and articles that you may find useful in your work. So ये हेल्प आपके सुपरवाइजर आपको कर सकते हैं, ठीक है. अब ये आप समझना होगा आपको कि prepare 2 copies of your proposal, preferably type. Get the signature of the supervisor of the on the format given in annexure A. Annexure A क्या है? तो annexure A है प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, जो कि मैं आपको नीचे दिखाऊंगा, ठीक है. एंड सेंड 1 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग ऑन द फॉलोइंग एड्रेस. तो एक बार आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, उस पर सिग्नेचर आपके सुपरवाइजर का हो जाए, तो वो प्रपोजल आपको सेंड करना है इस एड्रेस पे. यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज, ठीक है. कुछ बातें जो कि ध्यान रखनी है, वो आप इस गाइडलाइन को डाउनलोड करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है. तो अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. ओके, अपॉन its submission your project report will be sent to an examiner. You must secure a minimum 40% mark in your project work in order to successfully complete your course. Please note that the evaluation of your project will take a minimum of 2 months from the date of submission. ठीक है, तो आपके सबमिशन के बाद आपको 2 मंथ्स आपको इंतजार करना है और मिनिमम 40% मार्क आपको लेके आना होता है. Prepare 2 hard copies of your project work and send only 1 hard copy along with CD containing the soft copy of the report on the following address. तो ये आपको प्रोजेक्ट प्रिपरेशन के बाद आपको कहाँ पे भेजना होता है, ये वो एड्रेस है. अब हम चलते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस वीडियो के को बनाने का मेरा जो मकसद है वो इस पे ही टिका हुआ होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोजल. ठीक है, तो आप प्रपोजल बनाएंगे कैसे, आपको इतनी सारी बातें मैंने बताए हैं, ठीक है. कैसे आपको सुपरवाइजर आपका क्या हेल्प करेंगे, आपको सबमिट कहाँ करना है, ये सब मैंने बताया, लेकिन पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाए कैसे वो आपको समझना होगा, ठीक है. तो जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर का कंपोनेंट्स क्या होगा, पहले तो टॉपिक है. तो टॉपिक आप जब भी सिलेक्ट करते हो तो आप एक बार रिसर्च करना कि आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर किस टॉपिक पे आपका इंटरेस्ट है वो आप पिक करो, ठीक है. जो भी 2-4 टॉपिक्स आप पिक करो, उसके बाद अपने सुपरवाइजर से आप कांटेक्ट करके स्टडी सेंटर पे उसका टॉपिक फाइनलाइज करवा लो. एक बार आप टॉपिक फाइनलाइज करवा लोगे तो पहला काम आपका खत्म हो जाएगा. तो उसके बाद आपने क्या करना है, द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रपोज्ड प्रोजेक्ट, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद आपके उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए, जो सेकंड कंपोनेंट है, ठीक है, वो आपका इंट्रोडक्शन. टाइटल आपने लिख लिया, उसके बाद जो टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन चाहिए होता है आपको. इंट्रोडक्शन 1 to 2 पेज आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है विथ सिटेशन. डोंट एवर मिस सिटेशन इन योर प्रोजेक्ट, नहीं तो मे बी आपका सिनॉप्सिस रिजेक्ट होगा, ठीक है. तो सिटेशन के साथ आप इंट्रोडक्शन लिखोगे. उसके बाद अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम आपको लिखना है 1 to 2 पैराग्राफ्स में, ठीक है. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोपोज्ड स्टडी, आपके ऑब्जेक्टिव का पर्पस क्या है. जो ऑब्जेक्टिव्स है वो 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स जो कि आपके टॉपिक से मैच करें, वो ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं. देन यू हैव टू राइट रिसर्च क्वेश्चंस टू बी रेज्ड.
कभी भी आप ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चन ये दोनों आपके टॉपिक से मैच करना चाहिए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस एक दूसरे से मैच करना चाहिए, तो ये आप हमेशा ध्यान रखें। उसके बाद द काइंड ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, द काइंड ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड, किस किस्म का डेटा आप यूज करेंगे, अदर प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली रिटन इन योर प्रोजेक्ट प्रपोजल, ठीक है। Then you have to think about research methodology. Always remember that research methodology is a roadmap of your project proposal and project report. So you have to write it very carefully. Okay, इसके अंदर का जो components है वो क्या क्या होंगे? पहला होगा research design. कौन सा research design आप use करेंगे अपने project के अंदर, वो आपको mention करना है। उसके बाद nature and source of data, ठीक है। प्राइमरी डेटा यूज कर रहे हो, सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपको उसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद सैंपल एंड सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक आप यूज करोगे और कितने आपके सैंपल्स होंगे प्रोजेक्ट के अंदर, वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद टूल्स टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन, टूल्स टू बी यूज फॉर डेटा कलेक्शन के अंदर जो भी आप टूल्स यूज करोगे डेटा कलेक्शन के लिए, वो आपको वहां पे मेंशन करना है। अदर या तो क्वेश्चनर हो सकता है या फिर कोई टूल्स हो सकता है जो कि किसी ऑथर से मिला हो, ठीक है। देन मेथड्स टू बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन, और उसके बाद आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर आपको फाइनली लिखना है डेटा एनालिसिस टेक्निक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल डेटा स्टैटिस्टिकल टूल्स आप यूज कर रहे हो, टेबल्स ग्राफ्स यूज कर रहे हो डेटा प्रेजेंटेशन के लिए, दैट हैज टू बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड अंडर डेटा एनालिसिस टेक्निक, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे, हालांकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, यू हैव टू राइट द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी एज वेल, क्योंकि आपके सुपरवाइजर आपको बोलेंगे लिमिटेशंस भी डालने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद आपको डालना है एक्सपेक्टेड आउटकम्स एज पर द गाइडलाइन, ठीक है। एक्सपेक्टेड आउटकम्स, आपके प्रोजेक्ट वर्क से क्या क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स या कंक्लूजन निकल सकते हैं, वो आपको मेंशन करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट प्रपोजल। इतनी सारी बातें आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर होनी चाहिए फॉर द अप्रूवल, ठीक है, तो ये हमेशा याद रखें। अब इस गाइडलाइन के अंदर जो स्पेसिफिकली ये सारी बातें दी रखी हैं, वो सारे स्पेसिफिकली आपको कैसे कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो इसके एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर डाल रखा है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द थीम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये सारी बातें बता रखी हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट में ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखना है, रिसर्च क्वेश्चंस कैसे लिखना है, वो सारी बातें यहाँ पे बता रखी हैं जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है उससे उसके बारे में, ठीक है। नाउ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल आपका बन गया, सुपरवाइजर से फाइनल हो गया, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, अप्रूव हो चुका है, ठीक है। नाउ यू हैव टू एग्जीक्यूट योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए यू हैव टू डू द डेटा कलेक्शन एंड डेटा सोर्सेज, ठीक है। डेटा कलेक्शन कैसे करना है आपको, इफ यू आर यूजिंग द क्वेश्चनर इन योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यू हैव टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा थ्रू क्वेश्चनर। इफ यू आर यूजिंग एनी टूल, यू हैव टू कलेक्ट द data through that particular tool, okay. So in that way you can collect the data, primary data, ठीक है। and if you're using the secondary data as well, you have to mention that as well in your project, okay. and that is what is given। देखिए यहाँ के इसके अंदर प्राइमरी सर्वे, ठीक है। सर्वे क्या मतलब क्या, आप क्वेश्चन एयर लेके आप उस रिस्पोंडेंट्स के पास जाओगे, वहां पे सर्वे करोगे, वहां से डेटा कलेक्शन करेंगे, दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर गाइडलाइन इज सेइंग, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड, ये सारे डेटा कलेक्शन करने के टेक्निक्स हैं, ठीक है। नाउ डेटा एनालिसिस, आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल बना लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, अब इसका डेटा एनालिसिस करना है। तो डेटा एनालिसिस कैसे होगा, इफ इट इज रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे। देखिए इसके अंदर ये सारी बातें मौजूद हैं। आफ्टर टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा,
The next step is to process and analyze the data. Depending upon your need and objectives, the various quantitative techniques ranging from percentage mean, correlation, regression to advanced techniques like factor analysis, cluster analysis, etc., and qualitative methods may be applied to analyze the data. तो ये सारी टेक्निक्स आप यूज करके डेटा एनालिसिस करोगे, ठीक है. That is what is given in this guideline, ठीक है. Now illustrations, writing the project report. Okay. List of references, and then narration, academic query, and a part of that, ठीक है. इससे पहले कि मैं एनेक्सेस पे जाऊं, आपको मैं एक पर्टिकुलर वे बताता हूं कि कैसे आपको आपका जो प्रोजेक्ट है उसका कंटेंट्स क्या होगा, ठीक है. इस गाइडलाइन के अंदर प्रोजेक्ट का कंटेंट डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन से चैप्टराइजेशन आप इसमें डालोगे, ठीक है. तो मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ कि कैसे चैप्टराइजेशन आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर करोगे, ठीक है. गाइडलाइन के अंदर कोई पर्टिकुलर चैप्टराइजेशन का पैटर्न नहीं दे रखा है. तो depending upon my experience of researches, I'll gonna tell you the chapterization technique. Okay. So first आप प्रोजेक्ट प्रपोजल के अंदर आपका जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा. इंट्रोडक्शन के अंदर आपको जो आपका टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन आप डालोगे, और उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, रैशनल ऑफ द स्टडी हो सकते हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आएगा. उसके बाद the second chapter होगा वो review of literature होगा. What is review of literature? You have to understand the existing studies related to your studies which has already been done in your area, that are review of literatures, ठीक है. तो वो आपको second chapter में डालना है. Then the third chapter will be research methodology, जो कि synopsis यानी कि project proposal में भी mentioned है, but you have to write the same thing as a chapter in project report, ठीक है. फोर्थ चैप्टर आपका जो होगा वो होगा data analysis and interpretation. So whatever data you have collected from your survey, you have to present it in a tabular form or graph, or through graphs or figures. You have to present all your data in data analysis and interpretation. तो उसमें आपने टेबल्स के थ्रू डेटा प्रेजेंट करना है, ग्राफ्स के थ्रू प्रेजेंट करना है, और उसका इंटरप्रिटेशन भी लिखना है. सो यू हैव टू, इन दिस वे यू हैव टू. और हम अगर आप स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज कर रहे हो तो आप वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैज टू बी गिवन इन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन चैप्टर. So the next step for this particular project is the fifth chapter would be findings, conclusion and suggestions. So findings, conclusion and suggestions के अंदर whatever data you have collected and presented in your project report, you have to write findings, conclusion and suggestion depending upon that, ठीक है. तो जो फिफ्थ चैप्टर होगा वो फाइंडिंग, कंक्लूजन एंड सजेशंस का होगा. उसके बाद आपने जो 5 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने के बाद the next thing you have to mention is bibliography. So bibliography has to be written in APA format always. अगर आपका bibliography APA format में नहीं है तो आपके सुपरवाइजर में भी आपको बोलेंगे ये करेक्ट करने के लिए. So it's better you have to write all the references or bibliography in APA format. The next thing is if you have used any annexure questionnaire or any tool, you have to mention in under the annexure at the bottom of your project, ठीक है.
तो इन दिस वे ये सारी बातें आपको मेंशन करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट है वो एनेक्स्चर्स है। तो मैं एनेक्स्चर्स में बता दूं आपको, जो एनेक्स्चर एक के बारे में मैंने बोला था, तो ये प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफॉर्मा होता है, ठीक है, जो आप अप्रूवल के समय आप अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे, ठीक है। और अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एनेक्स्चर ए, सारे जो एनेक्स्चर्स हैं वो प्रोजेक्ट के अंदर लगेंगे, सारे प्रोजेक्ट के अंदर लगेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल प्रोफॉर्मा सिर्फ होता है जो प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ लगता है, एल्स एवरीथिंग इज attached with the project report. Okay, so in this particular guideline I already have told you so many things. अगर आपकी कोई query है, you can directly comment in the comment box. I will definitely answer and guide you through all your queries. Thank you very much for watching. अगर आप इस प्रोजेक्ट को बनाने में कोई दिक्कत आती है और आप अगर चाहते हो कि प्रोजेक्ट जो है आप डायरेक्ट हमसे गाइडेंस लें, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर WhatsApp number. Will assist you and we will provide you the project as well. You just have to study it and submit it in your university after studying. So thank you very much for watching. Have a wonderful day.